അയ്യോടാ ഇത് ഏതാ ഒരു പൊന്നു. ഞാൻ പ്രസവൻ കൃഷ്ണകുമാർ. സൗമ നടന്നു ഇത് ഞാൻ എടുത്തോളാം. ചുമ്മാ ഇരിക്കും സാറേ, ഞാൻ എടുത്തോളാം. ആഹാ. പിന്നെ എന്നാത്തിനാ ഈ ഗേറ്റ്? गेट लगा के लगे भैया കയറുന്നേ? രാത്രി വല്ലാത്ത കഴപ്പായിരുന്നു. ഏ? തന്നെ. എന്നാടാ? അയ്യോ ഇല്ല സാറേ. എന്നാ സാബു മോനെ? शराब गिर रही है शायद ना। अरे उस गाय ने कहीं यही तो എന്നാൽ लिखी ഈ കന്നുകാലിക്ക് എന്നാടാ മോനെ എന്റെ അടുത്ത് ഇത്ര വിരോധം? എന്തേരെ കഷ്ടപ്പെട്ടതായത്. इसीलिए और की साधु बेहोश। हाँ हो सकता है। क्या हो? मैंने देख लिया अभी भी पहुंचेंगे वहाँ। अब बता सकते हैं ये ना? ഇത് ഞാൻ പ്രത്യേകം വെഞ്ചരിച്ചുണ്ടാക്കിയ ഒരു എണ്ണയാണ്. ये अपनी दुकान खोली फादर ने नाम शनाब ये लगा रहा है। ഞങ്ങളാണേ നമ്പറാണേ മക്കളെ. സൂക്ഷിച്ചിറങ്ങണേ കുട്ടാ. ഈശാമിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. എപ്പോഴും സ്തുതിയായിരിക്കും. ഓ ആ ഡേവിസ് മോനെ, തൊഴുത്തിന്റെ കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ ये फालतू फंस गया वहाँ। अबे जब उन्हें वही चीजें करनी तो नहीं। ക്രിസ്മസിന് മാറ്റാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് കുട കലക്കി വെച്ചായിരുന്നു. ആ പക്ഷെ അത് കുടിച്ചു പോകുന്നൊരു ഡൗട്ട്. നീ എന്നാ പരിപാടിയാണ് अच्छा കാണിച്ചത്? इसने बता दिया। अच्छा अच्छा വേണ്ടിട്ടാ ഞാനിത് കലക്കി വെക്കുന്നത്. അല്ല ഡേവ് ചേട്ടൻ തന്നെ പറയട്ടെ. ഞാൻ പലപ്പോഴും കുടിച്ചിട്ടുണ്ടേ. കാര്യം തൊട്ടിട്ടുണ്ടോ? ആ പിന്നെ ആ, അതിനകത്ത് കച്ചവടം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ? ആരാടാ? അങ്ങനെ എല്ലാരും ചേർത്തലേ പറയരുത്. ഞങ്ങളാരും നിന്റെ മൂഞ്ചാൻ വന്നില്ല. എല്ലാരും കൊണ്ട് ഇവന് മൂത്തോട്ട് കയറിട്ടാണ് കാര്യം. ഇവൻ കൊണ്ട് തൊഴുത്തി കൊണ്ട് വെച്ച് കുടിപ്പിച്ചോന്നല്ല. फोन करने लग गया। ചപ്പക്കാരൻ കിട്ടുമോ? अच्छा हाँ, उसका असर कम करने के लिए सुनिंदे उसकी वही अब आई उस पे आवाज। അയ്യോടാ ഇത് ഏതാ ഒരു പൊന്നു. ഞാൻ പ്രസവൻ കൃഷ്ണകുമാർ. എനിക്കിവിടെ ചില അബദ്ധങ്ങളൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പശുവിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേപ്പിച്ച് എന്നാൽ ഇത് നടക്കും. എടാ മക്കളെ, സാറ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ? എവിടെയെങ്കിലും പോയി അപ്പക്കാരൻ കൊണ്ടുപോടാ. എന്നാലും ഉത്സാഹിച്ചേ. अब ठीक हो जाएगी वो। बारिश में। बारिश होने लगे। फादर फालतू आया हुआ है। काला जादू बोल रहा है। ओ आगे उसमें जाना। ചേട്ടാ, ഡേവ് ചേട്ടാ, तो फादर भी हैरान हो गया। स्टेप को फोन कर रहा है बताने के लिए उसको। ആയടി അന്നാ പോലീസ് ഡോഗിന്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ചെറിയ കയ്യബദ്ധമൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. हाँ इससे पूछ लेना चाहिए था सुरजन ना। അപ്പോൾ ഓക്കെ, താങ്ക് യു വൺസ് അഗൈൻ. അപ്പോൾ ഉറങ്ങുമൊന്നും വേണ്ടേ? എപ്പോ തുടങ്ങിയ ഓട്ടം? यहाँ भी शराब पीने लग गया। दिला रहा है शराब पीने तो आया तो
ഇതാകിന്റെ ചെറുതായിട്ട് കളിക്ക്. हेलीकॉप्टर है അതെ നിർത്തി 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 क्या हो गया क्या इसका बच्चा तो नहीं होने वाला अच्छा എടാ അവന് ഡോക്ടറെ ചെറുക്കൻ है അപ്പൊ ശരിക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ്. സാറേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. പശുവിനെ ഒന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് വിടാവോ? അത് പ്രസവിച്ചോളും. अच्छा कुछ करने की जरूरत नहीं है ചെയ്യണ്ടെന്ന്. പശു പ്രസവിച്ചോളൂ എന്ന്. അത്രേ ഉള്ളൂ. चाय बना रहे हैं നല്ല വെച്ചാ ദേവസ്യേട്ടാ ഇതേ പശു പ്രസവിക്കാൻ പോകാൻ തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ഇത് കർത്താവ് ഇത് പിൻകാലാണല്ലോ. എന്താ മുൻകാല ശരിയാണല്ലോ ഏട്ടാ, പ്രാവ് തിരിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത്. ഒന്നുമില്ല. ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റൂലേ കുഞ്ഞെ? അതിന് ഡോക്ടർമാരും ഇല്ല നല്ലതാണ്. ആ അത് വേണം. खींचेगा ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലിന് വേണ്ടി ആനിമേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇല്ല ഏട്ടാ, അതിനൊന്നും സമയമില്ല. എന്നാ പിന്നെ ഓർഡർ മക്കളെ, ആരെങ്കിലും പോയി പെട്ടെന്ന് പോടാ മക്കളെ. എന്താ ഏട്ടാ? എനിക്ക് അനുഭവം സങ്കടപ്പെടാടാ ഡേവിസ് മോനെ. ചേട്ടാ ടെൻഷൻ അടിക്കില്ല, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വഴി. ना फादर के पास तो है बोल ले रहा देखो चुप हो रहा दे नहीं रहा सब कैसे देख रहे हो उस पे? तो दे दिया പിതാവായ ദൈവമേ, പിടിച്ചേ അച്ഛാ, നേരത്തെ ഒന്ന് ആ ഓയിലൊന്നും എടുത്തേ. എന്നെ ലെറ്റ്സ് ഡു ദിസ്. होता है अच्छा ये टांग ओ राजेश इसको घुमाना है. कपड़े से खींच रहा है अब तो सर अपना आना चाहिए बच्चा दिक्कत हो रही है अब खींच क्यों रहा हो आ गया तो फिर जिसका अपनी बेटी याद आ रही ऐसा ഏതോ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നടന്നു കയറുന്ന പോലെ എനിക്കിപ്പോ തോന്നുന്നു. इसका भी होने वाला है बच्चा
तो यहाँ पर ये फिल्म खत्म होती है पालतू जानवर। अच्छी फिल्म थी और है ना। हाँ, एक उसकी लाइफ दिखा रही थी प्रसून की। एक सिंपल सी फिल्म है जिसमें कि उसकी लाइफ को दिखाया हुआ है कि किस तरह से जब वो जॉब पर जाता है तो मतलब उसे पसंद है नहीं, मतलब इस तरह की जॉब करना, पर धीरे धीरे वो अपने को उसमें मतलब ढालने की कोशिश करता है और आखिरकार वो उसमें मतलब सक्सेस हो जाता है। क्योंकि पहले तो कितनी बार 2 बार ट्राई किया उसने जॉब छोड़ने का। पहली बार तो चला ही गया था वो, मतलब उसका काम हर बार गड़बड़ हो रहा था ना, क्योंकि उसको आता नहीं था वो काम और वो एनिमेशन बनाना चाहता था, एनिमेशन मूवी। तो उसका मतलब पैशन भी अलग था, उस वजह से भी वो वहाँ अडेप्ट नहीं कर पा रहा था। तो फ्रस्ट्रेट ज़्यादा हो रहा था। अब इंसान होता ही फ्रस्ट्रेट जब उसको कोई काम नहीं आता है, जब उससे होता नहीं है। इसलिए तो गलतियाँ हो रही थी उससे ना। बाकी काम तो उसे मतलब आ जाना था धीरे धीरे ना। पर सबके सब उससे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मतलब ये जो भी कुछ करे सब ठीक करे, जैसे कोई एक्सपीरियंस बंदा हो। तो चाहे वो उसका वो सीनियर हो या फिर गांव वाले हो। हाँ, परेशान बहुत किया उसको सबने। और बाकी उससे भी एक गलती हो गई थी, जिस तरह से उसने हाई डोज का वो दिया था ना इंजेक्शन। हाँ, उसके सुनने में गलती हुई है, उसके किसी के बोलने में गलती हुई है। पर जिस तरह से कह रहा था वो कि मैंने तो वही दिया जो उन्होंने कहा। हाँ। तो मुझे लग रहा शायद उसी ने गड़बड़ दिया होगा। उसे क्रॉस चेक नहीं किया था ना एक बार, और वो क्रॉस चेक कर देता शायद तो अपनी फ्रेंड से पूछ लेता। हाँ। इस टाइप ही नहीं तो उससे तो ये लगा होगा ना, ये डॉक्टर जब बता रहा तो वो तो सही बता रहा होगा। हाँ। उसने ही सोचा होगा ना। हाँ, अगर कोई और बंदा बोलता तब तो करता क्रॉस चेक। और जब डॉक्टर कह रहा है तो तब उसने सोचा होगा ना कि इसको फिर ऐसे कुछ जरूरत है नहीं। पर ये था कि मुझे लग रहा है उस डॉक्टर ने शायद वो किया, उसने दिया गड़बड़, उसने गलत इंजेक्शन देने को कहा। ऐसे लग रहा मुझे। और फिर बाद में कह रहे कि इसे नहीं दिया गड़बड़, तब उसी पे सारा दोस्त डांटा। तो शायद यही लग रहा है मेरे को, ऐसा ही हुआ होगा। बाकी फिल्म अच्छी है और जिस तरह से उसकी लाइफ चेंज हो जाती है लास्ट के एंड में ना, उसे एक एहसास होता है कि मैंने कितना अच्छा काम किया। तब खुश होता है जब अच्छा काम हो जाता है उससे। वैसे तो जाने वाला था, बैग पैक करके बैग पे बैठ भी गया था। अगर वो आदमी नहीं आता, वही डेविस, मौली बीमार हो गई तब तक। हाँ, तो वो ये कि अगर डेविस नहीं आता तो वो चला ही गया था, चला जाता हो। और वो शराब नहीं पीते अगर, तो वो तो बेहोश था हो रखा, जो था दूसरा था। तो और डेविस भी सही टाइम पे आ गया। अगर वो थोड़ा लेट करता तो शायद हो सकता है उसकी गाय बच भी नहीं पाती। नहीं, बचना क्यों नहीं था उसने, बस अल्कोहल तो नहीं कंज्यूम किया जानवरों के लिए। नहीं क्या पता हार्मफुल होता हाँ, ये भी तो सकता है। जहाँ निकल रहा था ना, प्रेग्नेंट थी ना। और झाग भी उसके मुंह से निकल रहा था। अब पता तो चल गया कम से कम कि वो किस वजह से हुई। नहीं, उन्हें फादर तो लगा था जादू करने से, तंत्र मंत्र करने। अब ये क्या रहेगी, अब इसे खड़े उठाओ। अब ये खड़ी उठ जाएगी, ले जाओ इसे। वही ना, जहाँ भी अंधविश्वास आता है तो वो वैसा ही हो जाता है। फिर डॉक्टर की जरूरत लाइफ में नहीं, मतलब डॉक्टर की जरूरत क्यों पड़नी थी। वही है ना। तो उसका रीजन आखिरकार उसने पहली बार कोई जानवर ठीक कर ही दिया था। उसको मतलब एक कॉन्फिडेंस आ गया था ना उसके अंदर, फिर आगे वो उस आगे शायद वो गलती ना करे, है ना। कॉन्फिडेंस उसे पहले भी आ गया था उस दिन, जब उसने डॉग को बचाया था, उससे लगा था कि मैंने बचा लिया, पर ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हो गई। मूवी में ये भी दिखाया गया कि मतलब हर एनिमल की लाइफ क्या होती है। हाँ, मतलब हर एक प्रेशियस चाहे वो होती है, जानवर ही क्यों ना हो, कोई भी हो,
उसकी लाइफ बहुत कीमती होती है। तो और मूवी में मुझे मतलब जो बैसिल जोसेफ है उनका जो मतलब इस तरह इसमें उनका कैरेक्टर थोड़ा वैसा था, मतलब जैसे बाकी अदर फिल्मों में रहता ना, चुलबुला सा रहता है। हाँ, इसमें थोड़ा वैसा था, सीधा सा। और मतलब फिल्म अच्छी है, भले ही स्टोरी मतलब ऐसे ही बिल्कुल सिंपल सी है, पर जो भी कुछ दिखा रखा है उसमें मतलब मजा आता देखने में। एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, जिस हिसाब से इमोशंस है एनिमल के साथ हम कनेक्ट कर पाते हैं, वो अच्छे से दिखाया गया है। और बीच बीच में फनी मोमेंट्स भी हैं। और बैसिल जोसेफ का जो इसमें कैरेक्टर है वो मतलब काफी डिफरेंट है उनकी अदर मूवीज से। हाँ, इसमें उनका कैरेक्टर थोड़ा वैसा है ना, वो सीधा सा रहता हो, सिंपल रहते हैं। हाँ, बस उस टाइम आता था गुस्सा कभी कभार जब कुछ ज्यादा भी आता था। लास्ट में आया जब मतलब एक दो बार, अब प्रेशर तो बहुत था, एक तो सीनियर का प्रेशर रहता है, गांव वालों का प्रेशर रहता है, तो उस वजह से थोड़ा इंसान फ्रस्ट्रेट तो हो ही जाता है। अरे वो जो था वो मेंबर नहीं था, वार्ड मेंबर, वो बहुत चालाक था। हाँ, जॉर्ज स्टार्टिंग में कैसे फंसाया था उसने उसे। हाँ, उसी ने तो फंसाया स्टार्टिंग से उसको। अब बहुत मतलब शातिर था बहुत, वो क्या करता था, इमोशनल ड्रामा करने लग जाता था, सेंटी हो जाता था। हाँ, जब उसे लगा कि अब मैं फंस गया, और तब उसने सारा दोस्त उस पे डाला, जो ऑफिसर है यहाँ पे लाइफ उनसे पूछो। अरे उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो यहाँ नए आया हूँ, कैसे ऑफिसर बैठे जिनको कुछ नहीं पता। ऐसा ही होता है, मतलब किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए कहीं भी जाता है तो उसे उस मामले की डिटेल्स पता होनी चाहिए। पर वही था ना कि वो तो मतलब कहा तो उसने सही था कि मैं तो कल ही आया हूँ, मैं तो नया हूँ, पर वो बहुत शातिर था ना। उसने फिर अपने को बचाने के लिए फिर इमोशनल ड्रामा करने लग गया वहाँ पे, और तब उसी पे सारे दोस्त डाल दिए, फंस गया। तो मतलब फनी मोमेंट्स थे इस फिल्म में ना, बीच बीच में आ रहे हैं। और उसका जो सीनियर था वो भी बहुत ज्यादा चालाक था। हाँ, फिर बाद में दिखाई भी नहीं दिया वो। उसकी तबीयत खराब हो गई थी, हॉस्पिटल में उसका बिजनेस डूबा, वो साइड बिजनेस चला रहा था वो। उसके लिए भी क्या आराम से ना बोला था उसने कि तुम तो अपने मतलब बाप की जगह पे आए हो। हाँ, तुम्हें तो कुछ नहीं आता। अच्छा, ऐसे वैसे लगी उसकी जॉब ना। नहीं तो पहले तो बिजनेस करता था ना, वो बिजनेस उसका फेल हो गया था, और फिर उसके पापा की शायद डेथ हुई, तब फिर यहाँ आ गया था। लास्ट में उसका एनिमेशन ही काम आया है ना, वो आइडिया था ना उसका कैसे कैसे किया जाता है, तब थोड़ा उसको आइडिया लगा के उसने बस पढ़ा था उसके बारे में। बाकी एनिमेशन भी बनाया था शायद उसने, तो तब जाके वो उसके बच्चे को निकाल पाया, उस गाय के बच्चे को। तो मतलब भले फिल्म ऐसी है सिंपल सी, पर एक अच्छी फिल्म है। और सब कुछ बिल्कुल नेचुरल है इसमें। जो क्लाइमैक्स है वो बहुत अच्छा है, जिस हिसाब से वो बच्चा देता है, गाय बच्चा देती है मतलब, तो बहुत ही मतलब अच्छे से दिखाया गया था कि जो लोगों का जो इमोशंस दिख रहा था उस मोमेंट पे, कि सारे कितने खुश हो रहे थे, या जब वो उसको घर ला रहे थे वो गोद में उठा के, बहुत अच्छे से दिखाया गया वो आदमी उस गाय को मतलब एक जानवर की तरह नहीं, अपनी बेटी की तरह समझता था, इसलिए फिर काफी केयर करता था ना वो। बाकी एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी इसमें ना, सबकी, बैसिल जोसेफ हो या बाकी अदर एक्टर हो, मतलब सब बिल्कुल नेचुरल लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मतलब जैसे गांव की रियल, जैसे गांव की वो देख रहे हो, गांव की कहानी देख रहे हो, और जैसे गांव के लोग होंगे सारे, उसी तरह का बिल्कुल सबका एक्ट था ना, उसी तरह का माहौल भी दिखा रखा था। तो यहाँ पर ये फिल्म खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट मूवी के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर